केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಾಲಿನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲಿನ ಕೋಮುವಾದಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ. ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನೀತಿ, ಅಕ್ರಮ, ಕೋಮುವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯ ಅತಿಯಾದ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದ 92% ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಈ 50 ಲಕ್ಷ ಓಟುಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ: ಬಿಜೆಪಿಯ ದುರಾಡಳಿತ, ಕೋಮುವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಚಂದ್ರಲೋಕಗಳೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ್ದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅನೀತಿ, ಅನ್ಯಾಯ, ಕೋಮುವಾದಿ ಧೋರಣೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ 2B ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾವಾರು ಹಣವನ್ನ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ 10,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2,200 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಫಿಲ್, PhD ಮಾಡುವ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಸಿಕ 35,000 ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಈಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ KCN ನ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ನಿಷೇಧ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಜರಂಗದಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಸಂಘಿ ರೌಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಸಿ ಓಟು ಪಡೆದ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ರೋಹಿಗೆ, ನಂಬಿ ಓಟು ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ರೋಹಿಗೆ, 2B ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳಿಗೆ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ MLAಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. हम एक हैं. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಗೆಲ್ಲುವ ತನಕ ಹೋರಾಟ. ಏನ ಬರ್ಲಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ, ಏನ ಬರ್ಲಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಆವಾಜ್ ದೋ. हम एक हैं. भाइयों दोस्तों, गलती इन बेचारे MLAओं की या जो इख्तिदार में बैठे हैं उनकी नहीं है. उसमें तो बहुत से बेचारे इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे थे. उन्हें जाकर घर पर से कूदने की धमकी देकर, आंख पर पानी या तेल छिड़क कर जलाने की धमकी देकर उन्हें वहां से खींच कर लाकर जो है उन्हें इलेक्शन में कंटेस्ट कराया गया. जो लोग काम करना नहीं चाहते,
जो लोगों की खिदमत करना नहीं चाहते, अगर उन्हें अवाम घर से बाहर खींच कर लाकर उन्हें भरपूर वोट देकर जिताएंगे तो यही हालात देखने को मिलेंगे। समझे कि नहीं? समझ गए ना? हमारे औरतों बच्चों की आबरू खुलेआम नीलाम होगी। ये घर में सोते रहेंगे, कहेंगे अरे मैं तो खड़ना नहीं चाहता था, आपने वोट देकर जिताया, मैं क्या करूं? तो गलती किसकी है? वोट देकर जिताने वाले की गलती है। तो भाइयों दोस्तों, आज जो हालात हैं कुछ हद तक नहीं 100% वोटर्स के क्रिएट किए हुए हालात हैं। हम इन्हें पूरे तरीके से बेकसूर नहीं ठहरा रहे हैं। हाँ, ये भी एमएलए भी इख्तियार में जो है मिनिस्टर है कसूरवार है, लेकिन सबसे बड़े कसूरवार अवाम जो 5 साल में एक बार उन्हें वोट देकर इस हालात को बदलने का, इन लोगों को बदलने का जो खिदमत गुजार नहीं है, जो आवाज नहीं उठाते, ऐसे गूंगे मूकों को बदलने का मौका जब आता है तो अवाम फिर से उन्हें ही चुन लेती है। तो गलती अवाम की है। तो आने वाले इंतखाबात के दौरान अभी कॉर्पोरेशन है, एमपी इलेक्शन है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, बहुत से इलेक्शन है। अरे तब तो होश में आओ वोटर्स, मतदार, होश में आओ। अरे कांग्रेस कोई ये गारंटी देकर नहीं आई कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर नहीं आई कि वही जीतना है, उन्हीं को इख्तियार में देना है। 5 साल में एक बार इलेक्शन इसलिए आते हैं जो खिदमत गुजार लोग हैं, जो पार्टियां सही तरीके से लोगों के लिए जद्दोजहद करती हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके दर्द को समझती हैं, उनके दरमियान जीकर बसकर उनके दर्द को महसूस कर कर जो आवाज बुलंद करती है, उस आवाज में दर्द रहता है, जोर शोर रहता है, ताकत रहती है इन हालातों को बदलने में। इसे बदलेंगे ना भाई? मैं आवाम से भी पूछना चाहता हूं, मीडिया के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट खुलेआम एक मस्जिद के सामने उसे तोड़ने की धमकी देता है, मुस्लिम औरतों की इज्जत को नीलाम करता है, बुजुर्गों को और नौजवानों को धमकी देता है। इसके खिलाफ पूरे रियासत में मैं पुलिस को पूछना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी जो आपने खस्मे वादे किए थे आपकी नौकरी कर जमने के लिए, जमने के टाइम पर जो आपने कसम खाई थी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने के बिना ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಶಪಥ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶಪಥ? ಇವತ್ತು ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ 40 ಕಡೆ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಬಂದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಗೂಂಡಾ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. वही हमारे एक बुजुर्गान दीन, आलिम दीन अपने जज्बात को बयान करे। आज जो सोते हुए एमएलए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, एक वीडियो बनाया। हाँ, जज्बात में कुछ ज्यादा कहे गए, लेकिन इतना भी नहीं कहे कि उनके खिलाफ रौडी शीट ओपन किया जाए। हम धिक्कार करते हैं ऐसी सरकार पर जो पुलिस को और मिशनरी को, गवर्नमेंट मिशनरीज को इस्तेमाल करे अपोजिशन पार्टी को दबाने के लिए। पुलिस, ईडी, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सरकार के गुलाम नहीं है। उन्हें एक्शन लेना चाहिए मुजरिमों के खिलाफ, जो गलती करता है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इतने एहतजाज, इतने एफआईआर होने के बावजूद
कल्लर का प्रभाकर भट्ट का आज खुलेआम जंगली सांड की तरह घूम रहा है, उसके हौसले बुलंद हो गए या नहीं? वो और जोर से तो शांति तोड़ डाली, और ज्यादा उन्हें इख्तिलाफ और नफरत की आंधी फैलाएगा कि नहीं? प्रमोद मुतालिक के खिलाफ 300-400 केस दर्ज हैं, आज भी खुले सांड की तरह घूम रहा है। अगर मैं या हमारा आलिम दीन या हमारी पार्टी वाला कोई बयान कर दे तो रात को आधी रात को आकर हमें ले जाते हैं। हमने कई एहतजाज करने की कोशिश की, आधी रात को आकर हमारे लोगों को उठाया गया। रैयत किसान किसान हमारे अन्नदाता जो हमें राशन देते हैं, इस धूप में बारिश में मेहनत कर अनाज पिका कर हमें खिलाते पिलाते, वो कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही थी उसके खिलाफ एहतजाज करना चाह रहे थे। उन्हें भी रात को 5 बजे आधी रात को जाकर उनके लोगों को उठाया गया। क्या यही आपकी ड्यूटी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक नागरिक की, एक आपके भाई की सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए। क्या यह सिर्फ कानून स्वयं प्रेरित केसಗಳು UAPA ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ रेड अरेस्ट FIR सिर्फ अल्पसंख्यकों ಮೇಲೆ मात्र ना? हाँ, अकलियतों भी है क्या? मैं आपको हजारों ऐसे मामले दिखाऊंगा जहां हमारे खिलाफ FIR दर्ज होंगे, लेकिन जो प्रमोद मुतालिक और कल्लर का प्रभाकर भट्ट जो खुलेआम इंतशार करते हैं, मजहबी नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ये धिक्कार है, हम कंडेम करते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं फिर से डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं, आप लोग सरकार के गुलाम नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको एक्शन लेना ही होगा और उन्हें अरेस्ट करना होगा। और भाई बुजुर्गों दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा है, 2B रिजर्वेशन का वादा कर जो कांग्रेस इख्तियार में आई थी है, मुसलमानों के वोट के बिना यह हरगिज नहीं आ सकती थी। 90 लाख मुस्लिम्स, 50 पर 5 लाख वोट हमने पोल किए हैं। हमें वादा किया गया था कि जो हमारा हक था, जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं वहां पर 4% रिजर्वेशन था, जिसकी बदौलत उन्हें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और अच्छे सीट्स मिलते थे। आज हमें मिल रही है क्या? और सरकारी मुलाजिमत करने के लिए 4% रिजर्वेशन था। अगर कहीं सरकारी ऑफिस में 100 लोगों के लिए नौकरी खाली है तो 4 मुसलमानों के रिजर्व सीट्स थे, 4 लोगों को देना ही था। आज कहां है? और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैसे आएगी हमारे कौम आगे, कैसे तरक्की करेगी, कैसे वो तालीम याफ्ता बनेगी, कैसे वो सरकारी मुलाजिमत करेगी, कैसे इस हिंदुस्तान में एक इज्जतदार शहरी बनकर जिएगी, जब हमें बात करने पर अरेस्ट किया जाता है, FIR दिया जाता है, हमारे हक को छीना जाता है, हमारे हुकूक को छीना जाता है। अरे ये भी कोई बात हुई? अरे जागो जागो वोट करने वालों, ये नहीं कहना कि वो कुछ भी काम नहीं करे तो परवाह नहीं, हमें कांग्रेस का नुमाइंदा चाहिए। अरे शर्म करो, ऐसे अल्फाज उठाने से पहले, कहने से पहले, वोट डालने से पहले अपने घरों में झांक कर अपनी माओ बहनों को 10 बार, 100 बार, 1000 बार देखकर घर से बाहर निकलकर वोट डालने जाओ। जब आपको समझ में आएगा आपके माँ और बहनों की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, आप बेशर्मों की तरह जाकर वहां पर फिर वही नहीं नुमाइंदों को जो बुज़दिल है, कायर हैं, चूहे अपने बिलों में छुपे बैठते हैं, हमारे औरतों की इज्जत आबरू पर हमला हो, हमारे इबादत गाह पर हमला हो, हमारे यहाँ पर एग्जिस्टेंस पर हमला हो, नस्ल कशी की आवाज दे रहे हैं, मास मर्डर्स की आवाज दे रहे हैं, हाँ मैसेकर्स की आवाज दे रहे हैं। ऐसे होने पर भी कोई भी छुप कर बैठेगा, सब छुप कर बैठेंगे, तो फिर भी आप उन्हीं को वोट देंगे तो आपको शर्म आना चाहिए। मैं आपसे फिर से दोहराता हूं, आप वोट करने जाने से पहले अपनी माँ और बहनों का चेहरा देख के जाओ, वापस आने तक उनकी इज्जत तो आप सलामत रहेगी क्या नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। आज ऐसे हालात है। भाई और बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस तारीख को, इस मामले को जो जद्दोजहद SDPI कर रही है, हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं आप सबको ऐलान करना चाहता हूं, मीडिया के जरिए डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
is not made for only Muslims. It's a political party representing all the citizens of India. हिंदुस्तान के हर शहरी जो पासमंदा है, जो परेशान है, लाचार है, बेबस है, इन जालिमों के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी एक ही गाड़ी के बैल हैं, हमाम में सब नंगे होते हैं। ये उनकी खुजा में तेरी खुजा तुमको है। आज हिंदुस्तान में मनमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी दौलत ये लूट कर अपने भंडवालशाही दोस्तों के लिए की तरफ रवाना कर रहे हैं। अदानी अंबानी आज दुनिया के सबसे करोड़पति अरबपतियों में माने जाते हैं, और हम और आप और हमारे हिंदुस्तानी शहरी, आदिवासी, नोमैड्स, खानाबदोश लोग, और हमारे आप आसपास जाके देखिए, पीछे के गलियों में जाके देखिए, बहुत से लोगों तक खाने को खाना नहीं है। स्कूल का माफिया चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के एडमिशन के बोझ के तले आज लोग परेशान हैं, कर्जदार हैं। अरे कई लोगों तो आत्महत्या कर लिया है, खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों का गला घोट कर उन्हें मारकर खुद मर रहे हैं। तो आप हिंदुस्तानी शहरियत की तकलीफ को पहचानिए साहब, हिंदुस्तानी शहरी कितनी तकलीफ में आप पहचानिए, कितने लोग खुदकुशी नहीं कर रहे। पहले हम सुनते थे कि किसान अरे बारिश नहीं आने की वजह से, उसकी फसल नहीं आने की वजह से कहीं खुदकुशी करता था, बहुत अफसोस की बात है किसानों पर। लेकिन आज हर शख्स हमारे गलियों में, मोहल्ले में आज खुदकुशी कर रहे हैं, वो भी अपने बीवी बच्चों को अपने हाथों से मारकर खुदकुशी कर रहे हैं। तो ऐसे हालात हैं, तो धिक्कार है, हम कंडेम करते हैं। और आप लोग जागना चाहिए, आपके मोहल्लों में, गलियों में जगाना चाहिए। एसडीपीआई की जो तहरीक है, एसडीपीआई की जो पुकार है, एसडीपीआई का मकसद इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में चैन और अमन लाना है, इत्तेहाद लाना है। लिखिए, और इस हिंदुस्तान में जो भी गैर गलत काम हो रहा है, फिस्ताही ताकत जो मजहबी इंतशार फैला रही है, उनके खिलाफ आवाज उठाकर हम इख्तिदार में जब आएंगे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड देंगे, पकड़ो जो सजा करता है। अगर एसडीपीआई वाला भी गलती करेगा तो आप पकड़ सकते हैं। यह मत समझिए कि हम इख्तिदार में नहीं आएंगे, आप तसव्वुर भी मत कीजिए कि हम इख्तिदार में नहीं आएंगे। हम अगर जद्दोजहद करेंगे, मेहनत करेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान हमें दिया है उसे ठीक सगर से पकड़ेंगे, ठीक तरीके से वोट करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एसडीपीआई इख्तिदार में आएगी। हम गवर्नमेंट की मिशनरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई में, हम दे विल गिव देम फ्री हैंड टू टेक एक्शन अप्रोप्रिएटली। मैं ये कहते हुए और आपको फिर से ललकारते हुए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ललकार रहा हूं, पुकार रहा हूं, आवाज दे रहा हूं कि इस मुल्क के हालात बदलने हैं, हिंदू मुसलमान में इत्तेहाद और अमन आना है, तरक्की आना है। हमारे छोटे मासूम बच्चे अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो उठो, रातों की नींद को हराम करो और इस मूवमेंट में आगे बढ़कर इस पार्टी को इख्तिदार में लाओ। इंशाअल्लाह इस मुल्क के हालात बदलेंगे। कांग्रेस सरकार के सिद्धरामैया सरकार के जनाब रफत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।